Or supposing the child has some serious sickness and the doctor says, I need to give an operation. या सोच कर देखिए उस बच्चे को कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर कहता है कि मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. And the doctor takes the knife and the child sees it. और वो डॉक्टर उस छुरी को लेता है और वो बच्चा उसको देख लेता है. And the child cries, why daddy, why are you allowing this doctor to cut my stomach? और फिर वो बच्चा रोता है कि हे पिता तू क्यों इस डॉक्टर को अनुमति दे रहा है कि वो मेरे पेट को काटे. So they put some anesthesia on the child and put it to sleep. और फिर वो उस बच्चे को कुछ एनेस्थीसिया देकर उसको सुला देते हैं. Then the operation can do what they like. और फिर वो जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं. Why does a father allow a doctor to cut open the stomach of his child? क्यों एक पिता अनुमति देता है उस डॉक्टर को कि वो अपने बेटे के पेट को काटे. If you've never seen an operation, you'll think that man really hates his son. अगर आपने कभी ऑपरेशन देखा होगा तो आप सोचोगे कि ये पिता तो वाकई अपने बेटे से नफरत करता है. Actually, he's trying to save his son from some sickness. नहीं, पर वो अपने बेटे को किसी बीमारी से बचाने की कोशिश कर रहा है. Then after 1 month, the child is healed and he's healthy because of the operation. 1 महीने बाद वो बच्चा चंगा हो जाता है उस ऑपरेशन की वजह से. So the child cannot understand. और वो बच्चा ये समझ नहीं पाता. Parents understand the importance of school, the importance of operation. पर हम माता पिता समझते हैं स्कूल में जाने का महत्व, ऑपरेशन का महत्व. Or even a small thing like giving a bitter medicine to a child who is sick. या कोई छोटी चीज ले लो कि जो बच्चा बीमार है उसे कोई कड़वी दवाई पिलाना. The child doesn't understand why is the mother giving me such a bitter medicine. वो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मेरी माँ मुझे इतनी कड़वी दवाई क्यों पिलाती है. The mother hates me, that's why. मेरी माँ निश्चित तौर पर मुझसे नफरत करती है इसलिए. Why doesn't she always give me chocolate and ice cream? क्यों वो हर समय मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं देती. Why this bitter medicine? क्यों ये कड़वी दवाई पिलाती है. But it is because the mother loves the child that is giving that, so the child can be healed of the sickness. पर क्योंकि वो माँ उस बच्चे से प्रेम करती है और चाहती है कि वो बच्चा उसकी बीमारी से चंगा हो जाए. These are a few examples to show that young children cannot understand the ways of parents who love them so much. ये कुछ उदाहरण है ये इस बात को दर्शाने के लिए कि छोटे बच्चे अपने माता पिता के प्रेमी मार्गों को नहीं समझ सकते. In the same way, we must humble ourselves and say we don't understand why God allows certain problems in our life. बिल्कुल वैसे ही हमें अपने आप को नम्र कर कर कहना होगा कि हम इस बात को नहीं समझ पाते कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ समस्याओं को आने देता है. There are some Christians in some of the villages in North India who have been killed because they've been preaching Christ. ऐसे कुछ मसीही रहे हैं जो उत्तर भारत के गांवों में मार दिए गए क्योंकि उन्होंने मसीह पर विश्वास किया. The first apostle Thomas who came to India to preach, he was also killed. पहला प्रेरित थोमा जो इस भारत देश में आया सुसमाचार सुनाने के लिए उसको भी मार दिया गया. If God had allowed him to live for another 25 years, he could have gone to many more places and preached the gospel. अगर परमेश्वर अनुमति देता उसे और 25 वर्ष जीने की तो वो और कई जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करता. Why did God allow that? क्यों परमेश्वर ने इसकी अनुमति नहीं दी. I'll tell you the answer. मैं आपको उत्तर देता हूं. I don't know. मैं नहीं जानता. But I know one thing, that God's ways are much better than my ways. पर मैं एक चीज जानता हूं कि परमेश्वर के मार्ग मेरे मार्गों से काफी बेहतर है. So verse 6 is very important. और 6वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है. Verse 8, Isaiah 55 verse 8. माफ कीजिएगा 8वां वचन यशायाह 55 उसका 8वां वचन. My thoughts are not your thoughts. मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है. My ways are not your ways. मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है. Have you understood that? क्या आप इस बात को समझ गए हो? Think of the illustration of the father leaving the child in the school. और उस उदाहरण के बारे में सोचिए वो पिता अपने बच्चे को स्कूल में छोड़कर आता है. Allowing the child to have the doctor cut him open in an operation. अनुमति देता है कि डॉक्टर किसी ऑपरेशन में उसके बेटे के पेट को फाड़े. The child can't understand. बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाता. And then you ask the Lord, how much different is your way from my way? Just slightly different or very much different? और फिर आप प्रभु से प्रश्न करते हो कि परमेश्वर तेरे मार्ग और मेरे मार्गों में कितना अंतर है. थोड़ा सा अंतर है या बहुत ज्यादा. Then he says in verse 9, as the heaven is higher than the earth, so different are my ways from your ways. फिर 9वां वचन कहता है जैसे स्वर्ग आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है उतना ही तुम्हारे मार्गों और मेरे मार्गों में अंतर है. Not only different, but it is higher than your ways, it says. केवल अंतर नहीं बल्कि तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है ऐसा इंग्लिश में लिखा है.
And says there, my way of thinking is higher than your way of thinking. और इंग्लिश में लिखा है मेरे सोच विचार तुम्हारे सोच विचारों से बड़े हैं, महान है। That is faith. ये है विश्वास। To submit to God and say, Lord, your way is better than my way. आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए और कहिए कि प्रभु तेरे मार्ग मेरे मार्गों से बेहतर है। Your thoughts are much better than my thoughts. तेरे विचार मेरे विचारों से कई अधिक बेहतर है। So whatever your thoughts are, I accept it. और इसलिए प्रभु आपके जो भी विचार है मैं उनको स्वीकार करता हूँ। So the mother of James would have said to God, और याकूब के माँ ने परमेश्वर से कहा होगा when she heard that her son was killed at the age of 30, जब उसने सुना कि 30 की आयु में उसके बेटे को मार दिया गया है, if she had read Isaiah 55 verse 8 and 9, अगर उसने यशायाह 55 उसका 8 और 9 पढ़ा होगा तो she would have said, Lord, I don't understand why you allowed my son to be killed, but I'm sure there's some good purpose. उसने कहा होगा कि प्रभु मैं नहीं जानती कि क्यों तूने मेरे बेटे को अनुमति दी मार दिए जाने की, पर मैं निश्चित हूं कि इसके पीछे कोई अच्छा उद्देश्य होगा तेरा। So those such days can come in North India also. और ऐसे दिन उत्तर भारत में भी आ सकते हैं। We must be ready for it. हमें उनके लिए तैयार होना है And we must not lose faith at that time. और उस समय हमें विश्वास को नहीं खोना है। We must give that same faith to our children. यही विश्वास हमें अपने बच्चों को देना है। Many years ago in Africa, in one country, Christians were being persecuted. कई वर्षों पहले अफ्रीका के एक देश में मसीही लोगों का सताव हो रहा था। So there was a missionary there who went with his son to preach among a tribe where nobody had heard the gospel. वहां एक मिशनरी अपने बेटे को लेकर एक ऐसे जाति के बीच में गया जहां आज तक कोई मसीह का सुसमाचार लेकर नहीं गया था। He never heard about Jesus. उन्होंने कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। He went and preached about Jesus there. उसने वहां जाकर यीशु का प्रचार किया। He told them to give up all their idolatry and all and believe in Christ. उसने उन लोगों से कहा कि अपनी मूर्ति पूजा को छोड़कर यीशु पर विश्वास करें। So the chief of that tribe said, "We will kill you. और Go away from here." वो जाति का जो मुखिया था उसने कहा हम तुम्हें मार देंगे, कृपया यहाँ से चले जाए। He says, "I've come here to preach the gospel. You can kill me if you want." उसने कहा मैं यहाँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ, तुम चाहे तो मुझे मार दो। And they killed him in front of his son. और उसके बेटे के सामने उसे मार दिया गया। And then they told his son, "What about you? Are you willing to give up this Christ?" और फिर उन्होंने उसके बेटे से पूछा अब तुम्हारे बारे में क्या इस मसीह को त्यागने के लिए तुम तैयार हो? He was only 12 years old. वो केवल 12 वर्ष का था। He said, "Yes, I also believe in Christ. You can kill me." उसने कहा हाँ मैं भी मसीह में विश्वास करता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। But before you kill me, I want to do one thing. पर मुझे मारने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। And that little boy took off his shirt और उस छोटे बच्चे ने अपने शर्ट को निकाला and he gave it to the chief. और उसने उस मुखिया को अपना शर्ट दिया। And he said, "Please give this to your son before it is spoiled by my blood." और मेरे खून से रंगने से पहले इस शर्ट को अपने बेटे को दे देना, So that your son can wear it and always remember that I love you. ताकि तुम्हारा बेटा उसे पहने हमेशा इस बात को याद रखे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Even though you kill me, I love you in Christ. इसके बावजूद कि तुम मुझे मार दो पर मसीह में मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। How can a 12-year-old boy have such faith? कैसे एक 12 वर्ष का लड़का ऐसा विश्वास रख सकता है? That is the miracle that the Holy Spirit produces in people's hearts. ये एक चमत्कार है जो पवित्र आत्मा लोगों के हृदय में करता है। And when such days come to India, और जब ऐसे दिन भारत में आएंगे we must be ready for it. हमें उनके लिए तैयार होना है। We must prepare our children for it. हमें अपने बच्चों को उन दिनों के लिए तैयार करना है। Because there are also many other people who deny Christ when such times come. क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो इन समयों में यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। Because they love their life. क्योंकि वे अपने जीवन से प्रेम करते हैं। They'll worship some idol to save their life. वे किसी मूर्ति की आराधना करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। But one day when we get to heaven, पर एक दिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे we'll see so many hundreds and thousands of people who never bowed down to an idol and lost their life. हम कई हजारों की भीड़ को देखेंगे जिन्होंने एक मूर्ति के सामने न झुकते हुए अपने जीवन को गंवाया। How will you feel then
उस समय when you denied Christ for some small thing on earth. उस समय आप कैसे महसूस करोगे जब एक छोटी सी बात के लिए इस पृथ्वी पर आपने मसीह का इनकार कर दिया? So always think of the future. और इसलिए हमेशा भविष्य के बारे में सोचिए. See, on the earth, everybody thinks of their future on this earth and saves money for themselves and their children. और इस पृथ्वी पर हर समय लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं. Why do people save money in the bank? क्यों लोग बैंक में पैसे को इकट्ठा करते हैं? That is to save for themselves and then to give to their children also. ताकि उस पैसे की बचत होकर अपने आप के लिए और उनके बच्चों को वो दे सके. That's a very good habit. ये एक बहुत अच्छी आदत है. But we also need to have the habit of saving something for eternity. पर उसी के साथ साथ हमें एक ये आदत भी होनी चाहिए कि हम अनंत काल के लिए कुछ जोड़कर उसकी बचत करते हैं. That's not money, वो पैसा नहीं है, because there's no value of money in heaven. क्योंकि स्वर्ग में पैसे को कोई मूल्य नहीं. But if we can be true to Jesus on earth, पर अगर इस पृथ्वी पर हम यीशु मसीह के लिए सच्चाई से खड़े हो सके तो, and if we can be a witness for Christ, even if we lose our job or lose our life, और अगर हम मसीह के लिए गवाह हो गए, इस यहाँ तक कि अगर हमें अपनी नौकरी खोनी पड़े या अपना जीवन खोना पड़े तो भी, then when you get to heaven, you will feel really happy when you see Jesus. अगर ऐसा होकर हम स्वर्ग में जाए तब आप बहुत खुश रहोगे जब हम यीशु को देखेंगे. But if you deny Jesus here on earth, पर अगर इस पृथ्वी पर आप यीशु मसीह का इनकार करो तो, Jesus said he will deny you when यीशु ने- you stand before him. यीशु ने कहा जब आप उसके सामने खड़े रहोगे तो वो आपका इनकार करेगा. Then we will be ashamed. तब हमें बहुत लज्जा होगी. See Matthew chapter 10. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय. Matthew chapter 10, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय verse 27. उसका 27 वचन. First of all, he said in verse 26, don't fear anybody. सबसे पहले 26 वचन में वो कहता है किसी से भी मत डरना. And verse 27, what I tell you privately in the darkness, speak in the light. और 27 वचन, मैं जो तुम्हें अंधियारे में कहता हूँ तुम उसे उजियाले में कहो. And what I whisper in your ear, go and proclaim it everywhere. और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो. And don't be afraid, verse 26, 28, of those who kill your body, because they cannot kill your soul. और 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना. But fear God, who can destroy both your soul and body in hell. पर उसी से अर्थात परमेश्वर से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है. You think God will care for you? क्या आपको लगता है परमेश्वर आपके लिए आपकी देखभाल करता है? He says in 29, 2 sparrows are sold for 1 cent. 29 वचन कहता है क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती? And 1 cent in those days was the smallest coin. और 1 पैसा उन दिनों में सबसे छोटा एक सिक्का होता था. And these sparrows, there are so many sparrows, they were shops were selling them very cheap. और इतनी चिड़िया होती थी कि बड़े सस्ते दाम में इन चिड़ियों को बेचा जाता था. Storekeeper said, give me 1 paisa, I'll give you 2 sparrows. और दुकानदार ये कहता था 1 पैसा दे दो मैं 2 चिड़िया दूंगा. They are so worthless. और मानो उनका कोई मूल्य नहीं है. But verse 29, even one of them will not fall to the ground without your Father in heaven knowing about it. 29 वचन, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती.